Hello friends, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. आज का session we are going to start in continuation of our previous session, that was Indian economy on the eve of independence. So in today's session we are going to discuss the next part of EDR, that is O. O means occupational structure. So here today we will discuss about occupational structure in India on the eve of independence. Though we don't have such reliable data based which can show us related all the data, facts and figure at that time, but we have data related to 1951 on the basis of which we can easily understand what was happened in our occupational structure. But before it, you have to understand what is occupational structure. So before we start, those who are new on my channel, kindly subscribe my channel, like, share also, so that we can grow with each other, and my aim to give free and valuable education to everyone can be completed, can be fulfilled. So help me in growing in this way. So here we'll begin. Here we have occupational structure. First we need to understand what is occupational structure. So occupational structure here means the distribution of workforce. What is workforce? Workforce means a working people in our country. Any country who is having their human beings working for their own country in different occupation and earning their livelihood. Actually earning the livelihood is contributing towards economic growth. How? It is very simple. जब आप काम करते हैं, you are producing something. आप कोई goods का लिए production कर रहे हैं, कोई services का production कर रहे हैं. Ultimately, these all goods and services will be sold in the market and they will generate income. और वो income किसी न किसी की co-related income बनती चली जाती है and overall economy की income बनती है. Right? So इस तरह से income of the economy generated if people are working. So workforce means working people. And when these working people are discriminated on the basis of their occupation, means they are distributed in different occupation like primary, secondary and tertiary. You all know हमारी economy में, in all the economy of the world, we have three sectors of economy that I already taught you: agriculture sector, industrial sector and service sector, which is considered as primary sector, secondary sector and tertiary sector. So what is primary sector? Primary sector involves all those engaging activities in which workforce is engaged and earning their subsistence level of livelihood. Means सिर्फ अपने रोज की चीजें, रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कमाते हैं, like workforce, labor force engage in agriculture, mining, quarrying activities. तो ये सब कैसी एक्टिविटीज हैं? डेली बेसिस की, इन पे डेली अर्निंग होती है. ये कोई रेगुलर बेसिस पे है नहीं, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. तो ये सिर्फ काम कर रहे हैं फॉर अर्निंग देयर डे टू डे लाइवलीहुड. मतलब कोई कंटिन्यूस लर्निंग इनकी है ही नहीं. इस बेसिस पर हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इट इज एक्चुअली कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विच कन्वर्ट्स आवर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड. जो ब्रिटिशर्स ने किया, they used our raw material, they took it to their home country, developed them into their home country industries, made them final goods and then provided in our country in the form of finished good, and they created market in our country. So in this way they developed their manufacturing industries. So manufacturing industries means converting raw material into final goods which can be sold, can be usable for the people, for the consumer. तो इस तरह से हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, सेकेंडरी की बात करते हैं. एंड द सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, विच इज एक्चुअली कोरिलेटिंग बिटवीन द टू. It involves the rendering services by different people, different institution, different organization to the public to satisfy their related invisible wants. तो वो क्या होते हैं? लाइक डॉक्टर की कंसल्टेंट, डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज. तो ये सारी चीजें आती है. ट्रांसपोर्टेशन इसमें आता है. इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जितना भी होता है वो सब इन सर्विसेज में काउंट होता है. राइट? तो वो सर्विसेज कैसा था? हमारे लोग जो इंडिया के, अगर मैं पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करूं, तो कितने लोग प्राइमरी में काम करते थे यानी एग्रीकल्चर में, कितने इंडस्ट्रियल में और कितने टर्शियरी में. तो ओवरऑल जैसे हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा थे, पब्लिक ज्यादा थी, वर्कफोर्स ज्यादा थी. तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज वेरी क्लियर दैट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाज बाइज्ड एंड इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. हाउ? Here we have few points which you can understand easily. The meaning of occupational structure is distribution of workforce among different sector of economy. And I told you already, different sector are agriculture, industrial and service sector.
right? So these are different sector of economy. Now the first stage of occupational structure on the eve of independence was more dependency on agriculture. Like I said कि हमारी population गरीबी ज्यादा थी, तो लोग ज्यादातर रूरल एरियाज में ही रहते थे, वहीं पे काम करते थे, तो डेफिनेटली वहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन थी. हमने पढ़ा भी था एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर में 80% पीपल वाज एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्रीकल्चर. तो अगर हम बात करें वर्कफोर्स की तो वो भी वहीं थे, ज्यादा वहीं थे. तो क्या फैक्ट्स आर रिलेटेड टू इट? द फर्स्ट फैक्ट हियर इज एग्रीकल्चर सेक्टर अलोन अकाउंटेड फॉर 70-75% इन 1951. तो क्योंकि मैंने अभी बोला ये डेटा हमारे पास उस टाइम का इतना रिलायबल नहीं है, while I give you few data जो कंपैरेटिव में थोड़ा सा भी समझाऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन 1951 के डेटा को अगर हम चेक करें तो 70-75% यानी 3/4 पॉपुलेशन एज अ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. सेकेंड इंडस्ट्रियल सेक्टर विच कवर्ड 10% ओनली. इंडस्ट्रियल सेक्टर जो 10% ही रह गई, बहुत कम था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों का काम करने की कैपेसिटी. मींस मोर पॉपुलेशन वाज नॉट एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्यों हुआ ऐसा? वी ऑल नो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो लोगों को काम मिलना बंद हो गया था और दे वर ऑल माइग्रेटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर. तो उन्होंने प्राइमरी सेक्टर में ही अपना काम ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर से ऑक्यूपेशन उनका खत्म हो गया था. थर्ड इज सर्विस सेक्टर स्टूड एट only that is of 15-20%. Like I told you already, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें ठीक भी करी हैं, लाइक रेलवे डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट किया, लेकिन वो सब अपने खुद के फायदे के लिए, हमारे लिए नहीं. They give all or they develop all these aspects just for their own profit, their own motive, while we are using now but for their own motive. So in that sense we can say कि हाँ थोड़ा सा सर्विस सेक्टर हमारा एडवांस था कंपेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इस सेक्टर में कहीं कहीं पब्लिक सेक्टर का रोल भी था. लाइक मैंने आपको फॉरेन ट्रेड में भी समझाया था कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ एरियाज थे जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में थे, इसलिए इस सेक्टर में थोड़ा सा एडवांसमेंट हो गया था. सेकेंड फीचर रीजनल वेरिएशन. पहला क्या था? मोर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, जिसको हम एक और नाम देते हैं प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, डोमिनेंसी थी. प्राइमरी सेक्टर ने सारा वर्कफोर्स अपनी तरफ खींच रखा था. रीजन इज क्योंकि वही एक ऑक्यूपेशन था जो लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ लिविंग दे रहा था एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एट दैट टाइम. नाउअडेज वी ऑल नो द फिगर हैज बीन टोटली चेंज. इट इज ड्रामेटिकली चेंज बिकॉज यू नो इन सर्विस सेक्टर there are more people engaged nowadays. एग्रीकल्चर सेक्टर में तो वर्कफोर्स बहुत कम रह गया है कंपेयर टू दिस फिगर. अब हमारे ज्यादा लोग कहाँ हैं? सर्विस सेक्टर में, देन इन इंडस्ट्रियल, एंड द लास्ट इज एग्रीकल्चर. राइट. सेकेंड पॉइंट इज रीजनल वेरिएशन. रीजनल वेरिएशन था हमारी कंट्री में, क्यों ऐसा हुआ वो हमें समझना है. फर्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ डिपेंडेंसी रेशियो ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज स्टार्टेड इन स्टेट लाइक. इसका मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा एंगेज थे वो कौन कौन से स्टेट्स में डिक्लाइन होना शुरू कर गया? मींस लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ करके दूसरे कौन से सेक्टर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करने लग गए. किन एरियाज में? तमिलनाडु, शॉर्ट में लिखा है समझ लेना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल. इन तीन सारे स्टेट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 स्टेट्स में लोगों ने उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़कर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में काम ढूंढना शुरू कर दिया, तो उनका ऑक्यूपेशन डाइवर्ट हो गया. बट इट डजंट मीन कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करें तो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर से डिक्लाइन हो गया? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 70-75, बट उसी टाइम पे जब यहां से लोग निकल गए तो ये तो कम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ. रीजन इज सेकेंड पॉइंट, ऑन द सेम टाइम देयर वॉज इंक्रीज इन रेशियो ऑफ स्टेट इन स्टेट लाइक उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब. उसी टाइम पर जब यहां से, कहां से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना काम छोड़ करके इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ने लगे, सेम टाइम पर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर फ्रॉम उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहां से लोग छोड़ के कहां बढ़ने लगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में. इसलिए ये रेशियो बैलेंस हो गया, हम वापस वहीं के वहीं आ गए कि 3/4 वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. यहां डिक्रीज हुआ तो यहां इंक्रीज हुआ. अब ऐसा क्यों हुआ ये हमको समझना है. बिफोर वी गो फॉर दिस, जस्ट लुक एट द चार्ट अवेलेबल टू यू. इट इज फ्लैशिंग ऑन योर फुल बोर्ड. हियर यू कैन सी इन द चार्ट. चार्ट आपको बता रहा है कि दैट इन प्राइमरी सेक्टर in 1951 there was 72.7% workforce was engaged in primary sector. Like here I have given the ratio 70 to 75 na.
एक्चुअली अगर हम देखें तो वो 72.7 है। सेकेंडरी सेक्टर में 10.1 है, द एग्जैक्ट रेशियो वी हैव गिवन हियर, एंड इन टर्शियरी सेक्टर 17.2% है, दैट इज अकॉर्डिंग टू 15 to 20% में वेरिएशन है। कई बुक्स में कई जगह फैक्ट्स अलग अलग हैं, डेटास अलग अलग हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रेंज कवर कर दी सो दैट इट विल नॉट शो एनी वेरिएशन। वाइल ये जो फिगर पाई चार्ट आपको दिख रहा है ये 1951 के अकॉर्डिंग सही डेटा शो कर रहा है। तो जो ये रीजनल वेरिएशन आया कि कुछ स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्किंग पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी और कुछ स्टेट में बढ़ने लगी, उसका क्या कारण था, क्या ऐसा हुआ, क्या रीजंस थे, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ रीजंस एंड अदर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो ये शो कर रहे हैं कि कंट्री में ऐसा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऐसा क्यों था। अब समझना है हमें। सबसे पहला पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सबसे पहले फोकस हुआ था फ्रॉम ब्रिटिशर साइड टू डिक्लाइन, दैट वाज द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें क्या करा था उन्होंने, हाई टैरिफ लगा दिए थे हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट्स पे, जिसकी वजह से उनकी डिमांड इन वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन हो गई। तो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उनके खत्म होने की वजह से उसमें काम करने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन खत्म हो गया। देखो अब ये इस डेटा से तुम्हें बहुत क्लियरली दिखाई देगा कैसे। 1891 में ओनली 60% वर्किंग पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर। कितनी थी? सिर्फ 60%। कब थी? 1891 में। फिर 1901 19th सेंचुरी में जब हम आए, इट इंक्रीज टू 70%। कितना बढ़ गया? 70%। सो अब आप देखो 1891 से 1901 कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, खुद देखो, अबाउट ओनली 10 ईयर्स, राइट। तो 10 ईयर्स के डिफरेंस में ही कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? 10% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बढ़ गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसी टाइम पीरियड में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से वहां के लोग कहाँ आने लग गए, कहाँ माइग्रेट होने लग गए? एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरिया में, टू फाइंड देयर ऑक्यूपेशन। तो अब वहां पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या ऑब्जर्व किया? हाई प्रेशर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई, लो प्रोडक्शन हुआ, लो इनकम जनरेट हुई, और लोग सिर्फ अपने सबसिस्टेंस लेवल को कवर करने के लिए ही कमा पा रहे थे। मींस प्रॉफिट ओरिएंटेड तो रहा ही नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अज्यूम्ड एज प्रॉफिट लेवल ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने कमर्शियलाइज किया। लेकिन पॉपुलेशन का वर्कफोर्स पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई उस एरिया में कि प्रोडक्टिविटी कम हो गई। एग्रीकल्चर सेक्टर इतना प्रेशर झेल रहा था वर्किंग पॉपुलेशन का कि लोग सिर्फ विदाउट प्रॉफिट अर्न किए सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल का ही कवर अप कर पा रहे थे। मींस अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ही अर्न कर पा रहे थे, प्रोडक्शन कर पा रहे थे। सो ओवरऑल क्या हो गया हमारी कंट्री में 1951 का जब डेटा आया तो 70 to 75% पॉपुलेशन एंगेज्ड हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये किस रीजन से हुआ? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से यहां से लोग शिफ्ट होके यहाँ पे दूसरी इंडस्ट्री, जो शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, जो मॉडर्न इंडस्ट्री के टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के टाइम पे डेवलप हुई, वहां पे तो वर्कफोर्स रिड्यूस हो गया और यहाँ बढ़ गया, जिसकी वजह से प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर वाज इंक्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर फेस लेस प्रॉफिट with more pressure, low productivity, low production. So overall it was a state of growing backwardness in our country. So reason and others में हम इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। 3 फीचर्स हमने यहाँ कवर कर लिए in the category of occupational structure. First was predominance of agriculture sector, like I have already told you, describe you. Second is regional variation, and the third is some other facts or regions. So that's all for today. I hope you all have understood today's session that was related to occupational structure. Now we'll meet in the next topic, that is demographic structure on the eve of independence. Demographic means population. So till then, bye bye.